19th question. We have a tube here. Great. Now, this portion has a liquid, so let this liquid be one. This portion has another liquid. This portion has another liquid. And this portion has a gas. And it is given that atmospheric pressure is equal to 76 centimeter. Now what happens here? We can apply this concept, that is P ATM is equal to P1. What is P1? P1 is the pressure due to the mercury column. That means the first portion, that is this portion. This portion has Hg. How do I know that this portion has Hg? I know because the density is given as 13.6 gram/, which means P1 is the pressure due to the mercury column. P2 will be the pressure exerted due to the liquid in that portion, which is labeled 2 by me. P3 is the pressure exerted due to the third liquid, that is the 3. The liquid which has been labeled 3, and then P4 will be the, or we can say simply PD or P4, because see, for a gas, either I say PD or P4, it's not the same thing, because the entire region which has been marked as D in this diagram has gas. So the pressure due to the gas will be called PD. Now, P ATM is 76 centimeter mercury. P1. Now we know that when we take pressures, we have to take vertical components only. Now everything will be taken in terms of height of mercury. So for the first part, that is P1, I will write what? I will write 5 sine theta. It is 5 sine 30 degrees. Why 30 degrees? Because this is at an angle of 30 degrees. I just need the vertical component. Then for P2, this portion is 10 centimeter in height. Height in the sense it's length of that column, but I need the vertical component. It is I need the height. So again, I have to write what? 10 sine 30 degrees for P2. But now the care to be taken is that I have to multiply by the density of the respective liquid, which is given as 6.8 gram per cc, and then divide by 13.6, because ultimately I want the entire pressure term in terms of centimeter of mercury. Since the liquid in this part, that is second liquid column, that is this part, is not equal to mercury. The liquid given here is something else, it is not mercury. So I have to multiply by the density of that liquid and then divide by the density of mercury. So this entire thing will now give me the pressure in terms of centimeter mercury. Same thing has to be done for P3, that is 20 sine 30 degrees multiplied by density of the liquid is 3.4, and I have to divide by 13.6 plus 2. So now every term of pressure will be in terms of centimeter mercury. So 76 is equal to 5 sine 30 degrees 2.5. This will also be equal to 2.5 plus 2.5 plus PD. From here, PD will be equal to 68.5. That is the pressure exerted by the gas. Now, let us find out the pressure at point A. Now see, this portion is point A. So what will happen? If I want to find out the pressure at this point, again I will say that the pressure at this point A, it is only at this point A, at a particular point, will be equal to what? Will be equal to the pressure exerted in vertical direction because of all these things which are present above it. हम लोग सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर जो चीजें हैं उनकी वजह से जो प्रेशर है वो लेते हैं. अगर एक पॉइंट किसी एक पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो सो पीए क्या है? पीए विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे आपका पूरा P2 है, P3 है और PD है. So I will say PA is equal to P2 plus P3 plus PD.
P2 was 2.5 centimeter mercury. P3 was also 2.5. कैसे पता चला? देखो, we found out here. This is P2, this is P3, and PD is 3.5. From here we get this as the value of pressure at point A. Now pressure at point B. In a similar manner, I can find out pressure at point B. Okay. That will be equal to what? P3 plus PD. So pressure at point B is equal to P3 plus 2.5 centimeter mercury is the value of pressure due to P3, that is the third liquid, and PD is 68.5 centimeter mercury. So this gives me 71 centimeter mercury. This is the value of P. And then PC. This point is C, this entire part is PD. So I can say that PC is equal to, that is equal to 68.5 centimeter. Hence, option B, option C, and option D are correct. 20th question. 20. Now see, in the 20th question they have mentioned that there is a mixture of three gases. What are the three gases? SO2, O2, and CH4. These are the three gases present in the mixture. We know that the molar mass of SO2 is 64 grams per mole. We know that the molar mass of methane is 16 grams per mole. And we know that the molar mass of oxygen is 32 grams per mole. All right. The mixture comprises of these three gases. We do not know the number of moles of any component in this mixture. But हमें इतना पता है कि जो heaviest gas है यहाँ पे वो SO2 है क्योंकि उसका molar mass सबसे ज्यादा है, and the lightest gas in this mixture is 16 grams per mole, that is methane, CH4. अब याद रखो, जब भी हमें किसी मिक्सचर का मोलर मास निकालने बोलते हैं तो मिक्सचर का मोलर मास जो होता है उसका फार्मूला ये होता है, that is M average is equal to total mass upon total moles, यानी mass of SO2 plus mass of O2 plus mass of CH4. ये हो गया टोटल मास. मास का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्राम्स, यानी ग्राम्स ऑफ SO2 प्लस ग्राम्स ऑफ O2 प्लस ग्राम्स ऑफ मीथेन अपॉन moles of SO2 plus moles of O2 plus moles of. अब बात यह है कि जब भी किसी मिक्सचर का मोलर मास हम लोग निकालते हैं, मिक्सचर का मोलर मास जो भी निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर. दैट इज द फर्स्ट. सेकंड थिंग इज दिस कि वहां पे आइडेंटिफाई करना है हेवीएस्ट गैस कौन सा है. द हेवीएस्ट गैस इज SO2 एंड लाइटेस्ट गैस इज CH4. तो याद रखो, अगर हमें मिक्सचर का एवरेज मोलर मास बढ़ाना है, if I have to increase the molar mass of this mixture, यानी if I have to increase the value of M average, तो कभी भी हमें मोलर मास ऑफ मिक्सचर को अगर बढ़ाना है तो उसमें हेवीएस्ट और लाइटेस्ट के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा. और हेवीएस्ट और लाइटेस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हेवीएस्ट SO2 और लाइटेस्ट CH4 है. तो क्या करना है? ये होता है कंक्लूजन जो हमें याद करना है. First of all, as SO2 is the heaviest gas in the mixture, heaviest gas, as SO2 is the heaviest gas in the mixture, addition of any amount of SO2
addition of any amount of SO2, कितना भी आप SO2 ऐड कर दो, will always lead to an increase in the value of M average. Second point, as CH4 is the lightest gas, मतलब उसका मोलर मास सबसे कम है 16 है. As CH4 is the lightest gas, the mixture removal of any amount of CH4 will lead to an increase in the molar mass that is in the value of M average. ये तो पता हो गया. अब बात आती है O2. अब O2 बीच का है, यानी ना ही वो लाइटेस्ट है ना ही वो हेवीएस्ट है. उस केस में क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि जो O2 है, O2 का खुद का मोलर मास कितना है? 32 ग्राम पर मोल. तो अब हमें ये याद करना पड़ेगा कि if the average molar mass of the mixture, if the average molar mass of the mixture is greater than 32, if the average molar mass of the mixture is greater than 32, then addition of O2 will lead to a decrease in the value of M average, and if M average is less than 32, then addition of O2 will lead to an increase in the value of तो ऐसा हो जाएगा. ऐसा हो जाएगा. मतलब क्या हुआ, हम लोग ये नहीं कह सकते कि O2 को डालने से या निकालने से एवरेज मोलर मास पे क्या असर आएगा, जब तक हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअली एवरेज मोलर मास का वैल्यू क्या था. बट इनका पता है, चाहे एवरेज मोलर मास का वैल्यू कुछ भी हो, SO2 को बढ़ाने से एवरेज मोलर मास का वैल्यू बढ़ेगा और मीथेन के अमाउंट को घटाने से एवरेज मोलर मास विल डिक्रीज, विल आल्सो इंक्रीज. यानी दो चीजें हमें सर्टेनली पता है. क्या पता है सर्टेनली? SO2 को बढ़ाओ तो एवरेज मोलर मास का वैल्यू बढ़ेगा,
CH4 को थोड़ा कम कर दो, यानी थोड़ा अमाउंट CH4 का निकाल दो, तो भी मोलर मास एवरेज जो है एम एवरेज वो बढ़ेगा। लेकिन जो O2 का अमाउंट है वो बढ़ाने से या कम करने से एवरेज मोलर मास पे क्या असर आएगा, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली एम एवरेज का वैल्यू क्या है। अगर एम एवरेज का वैल्यू 32 से ज्यादा है, then addition of O2 will lead to a decrease in the value of m average, and if m average is less than 32, then addition of O2 will lead to an increase in the value of m average. इसके लिए ये जो ऑप्शन है, यानी जहां पे लिखा है उन्होंने कि ऑक्सीजन को बढ़ाने से मोलर मास बढ़ेगा, वो वाला सर्टेन नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि ऑक्सीजन को बढ़ाने से एम एवरेज का वैल्यू बढ़े, या फिर हो सकता है कि O2 को बढ़ाने से एम एवरेज का वैल्यू कम हो जाए, because that will depend on the actual यानी initial value of m average, and the initial value of m average is not given in the question. इसके लिए हम लोग सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि O2 इंक्रीज करने से एम एवरेज पे क्या असर आएगा। इसके लिए ऑप्शन बी पे हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज उनको चाहिए कि ऐसा ऑप्शन चुनो जिससे एवरेज मोलर मास बढ़े, यानी ऑप्शन सी से बढ़ेगा और ऑप्शन डी से बढ़ेगा। सी वाला कौन सा है, SO2 के अमाउंट को बढ़ाने से, डी वाला कौन सा है, मीथेन के कुछ अमाउंट को कम करने से। So C and D are the correct answers. B will depend, B का पता नहीं। Okay, let's go to the next question. Next question क्या है, 21st. एक 5 membered cyclic saturated hydrocarbon है, 5 membered cyclic saturated hydrocarbon आ गया, 5 membered cyclic saturated hydrocarbon। और क्या बोला है यहाँ पे कि there are two alkyl groups attached to the ring adjacent to each other. One is, let's say this, because they have clearly mentioned that one alkyl group has 2 carbon atoms. So the first group has 2 alkyl first alkyl group has 2 carbon atoms, and ऐसा alkyl group जिसमें 2 carbon atoms हो वो सिर्फ एक ही हो सकता है, that is ethyl CH2CH3. So this is the alkyl group that has 2 carbon atoms, clearly you can see. अब बात आती है दूसरे alkyl group की। Now see, they have mentioned that the second group has total 3 carbon atoms. Okay, total 3 carbon atoms हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं ऐसा। अब ऐसा एक हो सकता है ऑप्शन, लेकिन देखो बोला है ये कि इट्स मेन चेन कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम्स। मेन चेन मतलब क्या, इसको मैं मेन चेन मानूंगा, इस एल्काइल ग्रुप के मेन चेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 कार्बन एटम्स है ना, जबकि उनको उस एल्काइल ग्रुप के मेन चेन में 2 कार्बन एटम्स चाहिए। मतलब ये वाला नहीं हो सकता हमारा एल्काइल ग्रुप, बिकॉज इसमें 3 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं मेन चेन में। टोटल तो चलो 3 ही रहेंगे, लेकिन एल्काइल ग्रुप का जो मेन चेन रहेगा, यानी जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगा एल्काइल ग्रुप का, वो सिर्फ 2 कार्बन एटम्स का बना हुआ होना चाहिए। तो अब देखो क्या करेंगे, अगर 2 चाहिए तो चलो यहां से 2 कर देते हैं, ऐसा होगा। अब देखो इसमें 2 कार्बन एटम से एल्काइल ग्रुप के मेन चेन में 1 2 और टोटल 3 है। अब टोटल अगर 3 है तो यहाँ पे ब्रांचिंग करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। सो दिस एंटायर इज द एल्काइल ग्रुप, दिस एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, ऐसा। तो इसमें है तो चलो 3 कार्बन एटम्स, लेकिन the main chain has 2 carbon atoms. Which is the main chain? 1 2, this is the main chain. Main chain of the alkyl group. ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, How many secondary hydrogen atoms are there in the center carbon? Secondary hydrogen atoms मतलब क्या, ऐसे हाइड्रोजन एटम्स जो सेकेंडरी कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड हो। कौन कौन से सेकेंडरी कार्बन एटम्स है, चलो इसको मैं सर्कल कर देता हूं। जो सेकेंडरी कार्बन एटम है, एक ये रहेगा सेकेंडरी कार्बन एटम, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम बनता है। सो ये हो गए 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, ये तो सर्कल कर दिया। फिर यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, फिर यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, फिर यहाँ पे हो गए सारे के सारे। बिकॉज ये जो है दिस इज अ 2 डिग्री कार्बन,
ये जो है ये भी है 2 डिग्री कार्बन, ये भी जो है ये भी है एक 2 डिग्री कार्बन और ये भी है एक 2 डिग्री कार्बन। सो जो भी 2 डिग्री कार्बन एटम्स है उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है उनको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। सो टोटल कितना आ रहा है 8, ऐसे 8 हाइड्रोजन एटम्स है जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो 8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। NO2 माइनस NO2 प्लस NO3। ओके, अब देखो NO2 माइनस ऐसा होता है, ऐसा होता है NO2 माइनस, NO3 माइनस ऐसा होता है, ये होता है NO3 माइनस, राइट। और होता है NO2 प्लस ऐसा। अब NO2 प्लस इज लीनियर, इसमें sp इज द हाइब्रिडाइजेशन, सो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल रहेगा। ये sp2 है, 120 डिग्रीज हो जाएगा हाइब्रिडाइज बॉन्ड एंगल, बाय 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा बिकॉज इट्स अ प्योर sp2 हाइब्रिडाइज स्पीशीज। एंड मतलब ये जो तीनों के तीनों साइड एटम्स है वो तीनों के तीनों ही ऑक्सीजन है, यानी तीनों के तीनों सेम साइड एटम्स हैं जो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहेगा। और यहाँ पे जो है ये बेंड स्ट्रक्चर है NO2 माइनस का, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल विल बी समथिंग व्हिच इज लेस देन 120 डिग्री बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो ये बेंड हो गया, ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर, ये हो गया लीनियर। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका आएगा, लीनियर वाले का 180 डिग्री, फिर ट्रायगोनल प्लेनर का, और फिर सबसे कम NO2 माइनस का, ये सब हो गया। So NO2 plus is linear but NO2 minus is bent. Okay, now coming to NO2 minus again. अब NO2 minus में देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो लोन पेयर है, यानी वो पेयर्ड है, और बाकी जो ऑक्सीजन पे है इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर वो भी पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर्ड है तो स्पीशीज को बोला जाता है डायामैग्नेटिक, सो दिस बिकम्स अ डायामैग्नेटिक स्पीशीज, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायामैग्नेटिक हो गई। and NO2 minus and NO3 minus are having same bond length, ये तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कैसे सेम होगा, NO2 माइनस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, NO3 माइनस में नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ विल डिफर because percentage S character will differ, so bond length will differ. So the correct options are B and C. Okay, going to the next question. अब कुछ स्टेटमेंट्स देखे रखे 23rd क्वेश्चन में, PQRST, और 4 ऑप्शंस हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे हैं कुछ, जैसे BF2Cl, C6H6, SF4, HCO4. Now we have to choose molecules where at least 3 statements are applicable. PQRST में से कोई भी 3 स्टेटमेंट्स अगर एप्लीकेबल है तो उस मॉलिक्यूल को हमें सिलेक्ट करना है। तो चलो ऑप्शन बी जो है उसको देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, C6H6। नाउ C6H6 इज बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा होता है साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर जिसमें सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, ऐसा। अब सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है अगर, तो ये डेफिनेटली प्लेनर रहेगा, तो बेंजीन प्लेनर हो गया, sp2 हो गया। बेंजीन इज नॉन पोलर बिकॉज वेक्टर सम जो आएगा हर एक डायपोल मोमेंट का वो 0 आएगा, सो बेंजीन इज नॉन पोलर। एंड 120 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल बेंजीन। ये परफेक्ट ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और प्लेनर है पूरी तरह से, इसके लिए क्या होता है, इसके बॉन्ड एंगल्स भी 120 डिग्रीज होते हैं, सिमेट्रिकल है पूरा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए बेंजीन के लिए, पहला यानी P बिकॉज इट्स प्लेनर, एवरीथिंग विल बी इन द सेम प्लेन। R because it's non-polar, dipole moment is 0, मतलब non-polar, so statement R is also correct. And statement S is also correct, that is exactly sp2 का जो bond angle होता है 120 degrees वही है यहाँ पे 120 degrees. So P, R, S all three are correct statements.
तो बी आंसर हो गया हमारा। फिर डी की बात करते हैं, डी भी सही हो जाएगा। देखो कैसे, HCO4, I can draw the structure of HCO4. अब यहाँ पे देखो xenon के ऊपर कोई लोन पेयर बचेगा नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 मतलब क्या हो गया, px py pz, ऑल थ्री ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब स्टेटमेंट टी सही हो गया। और कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, यहाँ पे बोला है कि मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो ये भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो स्टेटमेंट आर सही हो गया। क्यों नॉन पोलर है, इट्स अ परफेक्ट टेट्राहेड्रन। तो परफेक्ट टेट्राहेड्रन होता है और सारे के सारे साइड एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। जैसे यहाँ पे सारे के सारे साइड एटम्स ऑक्सीजन एटम्स है, यानी ऑल आर आइडेंटिकल साइड एटम्स। तो इन दैट केस हमें बोलना है कि वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। सो नॉन पोलर हो गया, डायपोल मोमेंट 0। और एक बात ये है कि molecule has perfect bond angles about the central atom as estimated by its hybridization. Yes, 109 degree 28 minutes बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, और ऐसा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जहां पे सारे के सारे साइड एटम्स आइडेंटिकल हो, वहां पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। यानी स्टेटमेंट जो है एस वो भी सही हो गया। सो आर एस एंड टी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, हेंस थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो डी भी हमारा आंसर हो जाएगा। बी डी आंसर्स बोथ आर करेक्ट। ए एंड सी आर रॉन्ग। आप चेक कर सकते हो कि ए जो है वो BF2Cl है, वो नॉन पोलर नहीं है, वो पोलर है, राइट। तो वहां पे आप देखोगे तो होगा ये कि BF2Cl में तीन स्टेटमेंट सही नहीं आएंगे। कौन से स्टेटमेंट सही आएंगे BF2Cl के लिए, BF2Cl के लिए स्टेटमेंट पी सही हो जाएगा, प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो पी सही हो जाएगा। और कौन सा सही हो जाएगा, और अगर आप चेक करोगे तो एक भी सही नहीं है, तो सिर्फ स्टेटमेंट पी सही है BF2Cl के। SF4 को चेक करोगे तो उसमें भी देखो कितने स्टेटमेंट सही है SF4 के लिए, वहां पे स्टेटमेंट क्यू सही है, स्टेटमेंट क्यू सही है। और कौन सा सही है, स्टेटमेंट टी भी सही है, बिकॉज sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन। sp3d में भी सारे के सारे p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, ये sp बाय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ आपका स्टेटमेंट टी सही है, राइट। सो only two statements are correct for SF4, that is Q and T. बट हमें तो एटलीस्ट थ्री स्टेटमेंट सही चाहिए था ना, इसके लिए SF4 भी हमारा आंसर नहीं होगा, BF2Cl भी हमारा आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। उसमें देखो ऑप्शन ए में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H6। ऑप्शन बी में भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H6। सी में भी क्या हो जाएगा, C4H6। और ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा, C4H8। तो ए बी और सी है जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है, डी का फॉर्मूला अलग है। सो ए बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। 25th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोला है 1/9√3 करके चालू किया है। तो जब भी ऐसा होता है 1/9√3 या 1/9√6 या 1/81 ऐसा कुछ दिखता है ना, तो याद रखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 होता है। सिमिलरली अगर ऐसा दिखा 1/2√2 या 1/2√6 ऐसा कुछ दिखा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 2। और अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ ऐसा लिखा हो 1, कुछ अलग से है नहीं, ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है बट नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो n इज इक्वल टू 1। तो इसके मतलब जो क्वेश्चन में है वो n इज इक्वल टू 3 के लिए होगा। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज n इज इक्वल टू 3। नाउ कमिंग टू द एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसके लिए देखो जो चीज यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी है ना, 6 माइनस दिस एंटायर। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिग्मा का वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि L का वैल्यू क्या है। तो 6 माइनस सिग्मा का क्या है, 2ZR बाय N, 2ZR बाय N प्लस सिग्मा स्क्वायर 2ZR अपॉन N A नॉट।
और फिर आगे आपका है e रेज टू माइनस सिग्मा बाय। मतलब देखो अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे लोएस्ट पावर ऑफ आर जो है वो होता है एल का वैल्यू। लोएस्ट पावर ऑफ आर क्या है 6 into r रेज टू 0। यहाँ पे आर का पावर 1 है, यहाँ पे आर का पावर 2 है, यानी लोएस्ट पावर ऑफ आर क्या है यहाँ पे 0। Hence I will say L is equal to 0. So L क्या होता है लोएस्ट पावर ऑफ R in this expression. So N 3 है L 0 है, मतलब 3s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। 3s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं मतलब ऑप्शन A सही हो जाएगा। अब number of radial nodes is given by n minus L minus 1. So number of radial nodes will be equal to this, that is equal to 2. ये क्या है कि किसने निकाला है ये हम लोगों ने इसने निकाला है बिकॉज जब ग्राफ देके रखा है, देखो बाजू में ग्राफ देके रखा है, तो जब ग्राफ देके रखेंगे तो ग्राफ में हमें ये देखना है कि वो ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। So the number of radial nodes gives me the number of times the graph intersects the x-axis. तो कितनी बार x-axis को ये ग्राफ टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है ना, मतलब रेडियल नोड्स 2 है, तो यस ग्राफ भी सही है बिकॉज 2 बार टच कर रहा है वो, और फिर वो ऊपर से चालू हो रहा है, इन्फिनिटी से चालू हो रहा है। कभी भी s ऑर्बिटल के लिए जो शाय का ग्राफ है वो शाय वर्सेस r का ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से चालू होता है जब भी s ऑर्बिटल। तो ग्राफ सही हो गया। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज 2, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड आल्सो बिकॉज़ द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज 2 द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। देखो आप ध्यान से 2 बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। सो ग्राफ इज करेक्ट। नाउ थर्ड ऑप्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन रेडियल नोड्स। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन रेडियल नोड्स के लिए पहले हमें ये बताना चाहिए कि वो रेडियल नोड्स कहां है, यानी किस डिस्टेंस पे दोनों के दोनों रेडियल नोड्स है। अगर हमें ये पता चल गया कि r1 डिस्टेंस पे पहला रेडियल नोड है, दूसरा डिस्टेंस पे r2 है, या मानो इसको r1 मान लिया और इसको r2 मान लिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू रेडियल नोड्स विल बी इक्वल टू r1 माइनस r2। एक रेडियल नोड R1 पे है, दूसरा रेडियल नोड R2 पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू रेडियल नोड्स विल इक्वल टू R1 माइनस R2 इफ R1 इज ग्रेटर देन R2। तो अभी मैं R1 और R2 के वैल्यूज निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, हमें पता होता है कि रेडियल नोड्स के लिए शाई इज इक्वल टू 0, शाई स्क्वायर जो होता है वो 0 है, सो आल्सो आई कैन से शाई इज इक्वल टू 0, शाई इज द वेव फंक्शन। अब जो इक्वेशन क्वेश्चन में देके रखा है उसमें देखो सब कांस्टेंट्स जो है वो तो 0 नहीं हो सकते ना, कांस्टेंट्स तो कांस्टेंट्स ही है, तो 0 कौन सा पोर्शन हो सकता है, सिर्फ ये वाला 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, and now I can find out the value of sigma using the formula for quadratic equation. Now this is a quadratic equation, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा है ना। यहाँ से आप सॉल्व करोगे सिग्मा का वैल्यू, तो 6 प्लस माइनस ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। इसका आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा विल बी इक्वल टू, अब देखो सिग्मा के दो वैल्यूज आ रहे हैं। अब सिग्मा का मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा रहता है 2zr बाय na नॉट। z का वैल्यू 1 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, r1 मान लेते हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू दिस, n का वैल्यू 3 है, na नॉट है ना, सो 3na। अब ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3, यहां से r1 का वैल्यू आ जाएगा, तो r1 का वैल्यू कितना आएगा, r1 का वैल्यू आएगा 3a नॉट अपॉन 2 into 3 plus फिर सिग्मा 2 कितना आएगा 2 into 1 into r2 upon 3a naught that will be equal to 3 minus root 3, तो यहाँ से r2 का वैल्यू आ जाएगा अब r1 माइनस r2 करो, आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू रेडियल नोड्स कितना रहा है
3a0/2 कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में डालोगे, आएगा 2√3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज नथिंग बट 3√3a0, यानी ऑप्शन सी भी सही हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू रेडियल नोड्स इज 3√3a0। Coming to the next question, 26th question. एंडोथर्मिक मतलब जहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वी विल हैव टू सप्लाई एनर्जी, और दैट वी कैन से दैट द रिएक्शन और द प्रोसेस नीड्स एनर्जी और अब्सॉर्ब्स एनर्जी। ऑप्शन ए की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, S माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यस ये हो जाएगा एंडोथर्मिक, दैट इज डेल्टा H विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों ऐसा, हमें पता है कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज अगर आयन है और उसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो एनर्जी देनी पड़ती है, व्हिच मींस द प्रोसेस अब्सॉर्ब्स एनर्जी, सो दैट मींस डेल्टा H इज पॉजिटिव, सो एंडोथर्मिक हो गया। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, नियॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली ना, इनर्ट गैस के अंदर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो थोड़ी लेना चाहेगा, तो उसके लिए भी हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। Coming to the third option, it is C, नाइट्रोजन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है सेकंड पीरियड में, जहां पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डालने से नाइट्रोजन एटम के पास एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो दिस इज वन एक्सेप्शन भी दो, सो अगेन डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। नाइट्रोजन एटम के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो एनर्जी देनी पड़ती है, सो एनर्जी इज अब्सॉर्ब। डी में क्या लिखा है, डी में लिखा है Al3+। अब देखो, नहीं 3+ नहीं, सिर्फ Al+ है, तो Al+। अब देखो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन के पास अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो एनर्जी इज रिलीज्ड। आई रिपीट, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। So energy is released मतलब delta H is negative, which means it's an exothermic process. ऐसा हो जाएगा। So A, B and C are the correct answers because बोला है कि exothermic चाहिए। So A is exothermic, B is exothermic and C is exothermic. So ये हो जाएंगे आंसर्स हमारे। Next question, 27. Okay. अब देखो, अगर P को देखोगे, P और Q को देखोगे, तो P and Q are metamers. Why? NH के हिसाब से अरेंजमेंट अलग अलग है दोनों। So P and Q are metamers. P and Q are metamers. ओके, अब अगर R and S की बात करें तो देखो, R is a 3 डिग्री अमाइन, मतलब टर्शियरी अमाइन है, बिकॉज उसमें नाइट्रोजन एटम के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। S is a 2 डिग्री अमाइन, और दोनों R और S का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम भी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो डेफिनेटली दे आर आइसोमर्स, बिकॉज आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। बट किस प्रकार के आइसोमर्स से, वी नो दैट 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine are called functional isomers of each other. 1 degree amines, 2 degree amine and 3 degree amine are called functional isomers of each other. अगर molecular formula same है तो ही ये बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो मैंने पहले लिखा था पी एंड क्यू और मेटामर्स, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, नहीं तो ये भी सही हो जाता, बट ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिर्फ सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें पता है कि ऑप्शन ए में स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का,
फिर P का, फिर T का, फिर F का। ये होता है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। डी में क्या है? एटॉमिक साइज। नियॉन सबसे बड़ा है बिकॉज इनर्ट गैस है, वैन डर वाल्स रेडियस होगा। उसके बाद फ्लोरीन लिखा है, ये तो गलत हो गया ना। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है अगर आप सेकंड पीरियड में बात करेंगे। सेकंड पीरियड में फ्लोरीन सबसे छोटा होता है। यहाँ पे उल्टा लिखा है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से बड़ा है, विच इज रॉन्ग। सो बी ऑप्शन गलत हो गया। सी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नियॉन का सबसे ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि इनर्ट गैस है, सेकंड पीरियड का लास्ट इनर्ट गैस वही है। और फिर सही है एफ एन ओ सी। हमें पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर इसलिए है बिकॉज नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p3 है और ऑक्सीजन का 2p4 है। हमेशा 2p3 और 2p4 में से 2p3 is more stable and that is why it is more difficult to take out one electron from 2p3, as a result of which the ionization enthalpy of nitrogen is greater than the ionization enthalpy of oxygen. So N की ionization enthalpy O की ionization enthalpy से ज्यादा है, यानी ये ऑर्डर सही हो गया सी। डी क्यों गलत है? डी इसलिए गलत है बिकॉज डी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही ऑर्डर होना चाहिए क्या? Cl, फिर F, फिर Br और फिर I, ये होता है सही ऑर्डर। क्वेश्चन में ये देख के रखा है तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ए और सी। कमिंग टू 29th क्वेश्चन। 25% एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? 25% एस कैरेक्टर का मतलब यह है कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। hybridization of the central atom should be sp3। इसी का मतलब होता है कि 25% s पैटर्न होना चाहिए। NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। XCO3 में xenon का हाइब्रिडाइजेशन इज xc3। तो यहाँ पे sp3, ये भी sp3। और कौन है? PCl3 में भी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बाकी कोई भी ऐसा स्पीशीज यहाँ पे नहीं है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। Just one thing I would like to highlight, किसी को अगर ये लगा होगा कि NSiH3 thrice का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आना चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है बिकॉज दिस हैज बैक बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग the lone pair of nitrogen atom is no longer localized on nitrogen, यानी नाइट्रोजन के ऊपर वो लोन पेयर रहता नहीं है, वो सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में चला जाता है। सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में चले जाने की वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि इसका ऐसा हो जाता है, यानी SiH3 ऐसा। और अभी मैं ये बोल सकता हूं कि ये नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, because that lone pair is no longer available on top of nitrogen ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डीलोकलाइज हो गया सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में। इसके लिए हम लोग को ये बोलना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 in this case because of back bonding। NSiH3 होता है, इसका नाम है, उसको बोलते हैं ट्राइसिलाइल अमाइन। ट्राइसिलाइल अमाइन। ओके, तो यही तीन बस होंगे आपके करेक्ट आंसर्स। कमिंग टू द 30th क्वेश्चन। How many of these will have bond order greater than 1.5? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अगर MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज कर रहे तो N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, राइट? N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। CO3 2 माइनस की अगर बात करें कार्बोनेट, तो ये होता है कार्बोनेट आयन। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग? 4/3। Why 4/3? Number of bonds formed by the central atom is 4 upon number of side atoms, that is 3. There are 3 oxygen atoms attached, so 4/3, which is equal to 1.3. तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया यहाँ पर NO प्लस
NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे पहले ये देखते हैं। नाइट्रोजन has 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन has 8 इलेक्ट्रॉन्स, so 7 plus 8 15 इलेक्ट्रॉन्स, बट +1 का चार्ज है यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। Right? Next one, O2, 16 electrons, O3, तो O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय द सेंट्रल एटम 3, 3 बॉन्ड्स बना चुका है ना ऑक्सीजन एटम बीच का, अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम्स व्हिच इज 2, तो 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर ओजोन का। B2, number of electrons in B2 is how much, 10 electrons, 10 electrons होंगे। BE2, BE2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 into 2 8 ना, एक बेरिलियम एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। O2 plus 15 electrons and O2 2 minus में 18 electrons, ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। We have found out the number of electrons and bond order हम लोगों ने ओजोन का देखा 1.5 है और CO3 2 माइनस का देखा 1.33 है। अब एक शॉर्टकट अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करेंगे तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिख दो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखो, ये एक शॉर्टकट है बस, ताकि आपको बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिखना पड़े। तो यहाँ पे 1 लिखूंगा और 0.5 से बढ़ाता जाऊंगा तो 1 1.5 हो गया, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ पे 3, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ा रहा हूँ 0.5 से, सो 1 से चालू करना है आपको और 3 तक जाना है और 3 से फिर कम करना है, एक बार 3 हो गया ना तो 3 से कम करते जाओ 0.5 से, सो 3 से कम करता जाऊंगा तो 2.5, 2.5 से कम करूंगा तो फिर 2, देन 1.5 एंड देन 1 हो गया। अब देखो 1.5 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कौन कौन से स्पीशीज का है, ऐसे स्पीशीज का है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 12 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 13 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 14 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 15 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 16 है। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 या 13 या 14 या 15 या 16 है तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं दैट द बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5। देखो 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स कहां है हमारे एग्जांपल में, यहाँ पे 13 है तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 15 है ये भी एक आंसर हो जाएगा बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5, ये भी आंसर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5, ये भी आंसर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5, ये भी आंसर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर है किसी स्पीशीज में तो बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1.5। कैसे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, when the number of electrons is 14 then the bond order is 3, when the number of electrons is 13 then the bond order is 2.5, when the number of electrons is 12 the bond order is 2। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब बात ये है कि रही बात इसकी B2 की, तो B2 और B2, चलो B2 तो हो गया, B2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आ रहा है तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 व्हिच इज अगेन लेस देन 1.5, तो उसको तो नहीं गिनना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछा है कितने स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1.5 है। तो अभी B2 की बात करते हैं। B2, अब B2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8, अब 8 के लिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट है नहीं, ये तो चालू हो रहा है 10 से, शॉर्टकट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 से लेके 18 तक का है ना, तो 10 से नीचे जो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा रहा हूं मैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s,
सिग्मा स्टार्ट टू एस, ऐसा हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 में से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। नाउ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दैट इज 4। कौन से 4? ये 2 और ये 2, 4, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दैट इज ये 2, हो गया 0। सो 0 इज अगेन लेस देन 1.5, जिसको भी नहीं गिनेंगे। तो किनको गिनेंगे हमारे आंसर के लिए? सिर्फ जिनको मैंने ऐसे करके हाईलाइट कर दिया, रेक्टेंगल बना दिया है जिनका राउंड। सो 1 2 3 4 5, 5 स्पीशीज है जिनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा है। O2 प्लस का, O2 का, NO प्लस का, N2 माइनस का, N2 प्लस का। ओके, 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है शुड नॉट बी एनी डबल बॉन्ड, देयर शुड नॉट बी एनी डबल बॉन्ड, सो नो डबल बॉन्ड। एक भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। सिमिलरली एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, सो नो ट्रिपल बॉन्ड। ये कब बोलेंगे? ये दोनों के दोनों कंडीशंस बोलेंगे व्हेन इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन और कुछ नहीं रहेगा, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट। तो ऐसे कौन सा स्पीशीज से मैं बना के दिखा रहा हूँ? ये वाला रहेगा पहला स्पीशीज, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये एक हो जाएगा स्पीशीज। फिर एक स्पीशीज ये हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा, तीसरा ये हो जाएगा, इसमें भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है और सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम से। फिर एक ये हो जाएगा डायमंड जैसा, और कौन सा हो जाएगा? ये वाला। All these are hydrocarbons because they contain carbon and hydrogen atoms only. Also, all these are saturated because none of them contains a double bond or a triple bond. तो ये 5 हो जाएंगे हमारे आंसर। Next question. How many parent chains have the root word hex or hexa? देखो मैं दिखाता हूँ एक एक का, मेन चेन को नंबर करके तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे, इसमें तो हेक्स वर्ड नहीं आ रहा है ना, हेप्ट आएगा, तो ये आंसर हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट, इसको ऐसे नंबरिंग करोगे तो इसमें आ रहा है हेक्स वर्ड, तो यस ये एक है, तो टिक लगा दिया मैं। इसमें आ रहा है ना हेक्स वर्ड। फिर कौन सा है? लेट्स चेक दिस वन, इसको चेक करके देखते हैं इसमें क्या है। इसमें चेक कर, इसमें क्या रहा है? ऐसे जाओगे तो इसमें 7 का, इसमें भी नहीं आएगा। फिर अगला कौन सा है? इसका नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ, तो 1 2 3। तो इसमें आंसर आता है, ये भी सही आंसर है। इसमें 6 आ रहा है ना, मेन चेन के अंदर 6 का एटम्स आ रहा है, यानी पेरेंट चेन के अंदर। तो नेक्स्ट, इसमें भी आएगा, दिस विल बी माय पेरेंट स्ट्रक्चर। तो साइक्लोहेक्स यानी हेक्स वर्ड आ गया, ये भी टिक लगा देता हूँ इसके नीचे। वही भी ऐसे ही होगा, ऐसा होगा नंबरिंग। साइक्लोहेक्स वर्ड आएगा इसमें, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं।
इसमें इसका क्या है, ऐसे नंबरिंग होगा। तो इसमें 7 कार्बन एटम्स का चेन बन रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। अगला, इसमें भी 7 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन कौन से जो आंसर में 6 आ रहा है, 1 2 3 4, so 4 is the answer. Okay, 33rd question. ये अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन टाइट्रेशंस। KXHY C2O4Z ऐसा है, डॉट NH2O। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसका जब पॉइंट, चलो इसको ए मान लेता हूं मैं, बार बार लिखना पड़ेगा तो सॉरी। सो व्हेन ए इज रिएक्टिंग विद KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, तो हमें पता है न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 गेट्स कन्वर्टेड टू MnO2, और हमें ये भी पता है कि ए के अंदर एक ही पार्ट है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, C2O4 C2O4 गेट्स कन्वर्टेड टू CO2, तो ऐसा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ऐसा सब होगा। अब ए के अंदर क्या है, ऑक्सीलेट सीट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। Okay. Now I will use law of equivalence. So gram equivalence of oxalate, सिर्फ oxalate वाला पार्ट ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ ऑक्सीलेट लिया है। So gram equivalence of oxalate oxidized will be equal to gram equivalence of KMnO4 reduced. मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट कितने आएंगे? अब क्वेश्चन में बोला है कि 0.1 मोल्स ऑफ कंपाउंड ए आर गिवन। अब 0.1 मोल्स मतलब कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट आएंगे? अगर आप चेक करोगे तो एक मोल में Z मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट एट देयर, सो 0.1 मोल्स ऑफ द कंपाउंड में 0.1 into Z मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट विल बी देयर, सो 0.1 into Z मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीलेट विल बी 2। 2 कैसे आया? ये 3 से 4 में जा रहा है, 4 minus 3 is 1, 1 into नीचे वाला नंबर कार्बन के 2, so 1 into 2 is 2, so factor of ऑक्सीलेट is 2 is equal to moles of KMnO4 into n factor। n factor of KMnO4 कितना आएगा? 7 से 4 जा रहा है, so 3 आएगा n factor। Molarity is given as 0.1, volume is given as 2 liters, so molarity into volume is moles, moles into n factor is GQ। तो ऐसा आ गया। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो Z का वैल्यू 3 आएगा ऐसे। ये हमें पता चलेगा। और क्या पता करना है, ये भी बताया क्वेश्चन में कि अगर कंपाउंड ए को रिएक्ट करवाया बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। नाउ इन द क्वेश्चन इट्स मेंशन्ड दैट ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन ए आर आयनाइजेबल। मतलब क्या हुआ इसका, जब एज एन एसिड ए फंक्शन कर रहा है, सो ए इज एक्टिंग एज एन एसिड इन दिस रिएक्शन, तो जितने भी इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स है सारे निकल सकते हैं H+ के फॉर्म में। और हमें पता होता है कि जब भी कोई एसिड अपना H+ लूज करता है, then the number of H+ ions lost by one molecule of the acid is called the N factor of that particular acid. So what is the N factor in this reaction then for this acid? The N factor will be equal to the number of hydrogen atoms. अब कितने हाइड्रोजन एटम्स है? एक मोल में तो Y हाइड्रोजन एटम्स है, अगर आप चेक करोगे तो 1 मोल हैज Y हाइड्रोजन एटम्स, और 0.1 मोल्स में कितने रहेंगे? 0.1 into Y, so 0.1 into Y, मतलब N फैक्टर अगर Y है तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ GQ of A will be equal to number of moles, that is 0.1 into N factor, that is 5, and number of GQ of barium hydroxide क्या होगा? We know that acid base reaction में भी हम लोग बोल सकते हैं कि number of GQ of acid is equal to number of GQ of base। तो barium hydroxide का कितना लेके रखा है?
मोल्स into n factor, so n factor 2 हो जाएगा barium hydroxide का, because BaOH twice है. 1 liter बोला है वॉल्यूम, 0.1 मोलैरिटी, so 0.1 into 1 is the number of moles. ऐसा हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो. So 0.1 into y is the number of GQ of A. ये क्या है y? n factor of A. And 0.1 क्या है? Moles of A. So 0.1 into y is equal to number of GQ of barium hydroxide. यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू, which is equal to 2. ये कट जाएगा और y का वैल्यू 2 आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो n है, n बोला है कि it is known that for each H plus we have one molecule of water as water of crystallization. मतलब जितने H plus ionizable है उतने ही water molecules crystallization के हैं. कितने H plus ionizable है? Y, because Y is the number of hydrogen atoms. तो क्या बोलेंगे? The value of n is equal to y. Read the last statement of the question. It is given that for each H plus we have one molecule of water present as water of crystallization. तो कितने H atoms है उतने ही H plus ions है ना. तो कितने H atoms है? H atoms equal to y. One molecule of A has y H atoms. And we know that जितने भी H atoms है उतने ही N यानी उतने ही molecules of water of crystallization है, because for every H we have one molecule of water as water of crystallization. So N is equal to y, यानी N का वैल्यू क्या आ गया? 2, because y का वैल्यू भी 2 है. अभी y का वैल्यू 2 निकाला था. ओके, अब x का वैल्यू निकालना है. तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है. मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कैन राइट लाइक दिस x into 1, बिकॉज़ पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम्स को x यहां पे दिया हुआ है. तो 1 क्या है? 1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, प्लस y into 1, because 1 is the oxidation state of hydrogen, plus z into -2. ये -2 क्या है? -2 is charge on oxalate, charge on C2O4 उसको बोलते हैं, is equal to 0. Why 0? because overall तो न्यूट्रल है. y का वैल्यू अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना? 2. z का वैल्यू कितना निकाला? 3 पहले ही. ऐसा ऐसे x आ जाएगा. तो अब कर सकते हम लोग x into z upon n into y. So 4 into 3 upon 2 into 2. तो आंसर क्या आ गया? 3. So फाइनल आंसर इज 3. यही तो पूछा था क्वेश्चन. 34th question. How many of these will change their block if each orbital contains 3 electrons? Okay. तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखना पड़ेगा एक एक का, so that the number of electrons is 3 per orbital. तो इसका क्या हो जाएगा? 1s3 2s2. मतलब अगर आप चेक करोगे तो बोरॉन का ब्लॉक अभी s ब्लॉक हो जाएगा. एक्चुअली बोरॉन p ब्लॉक में आता है, बट अभी क्यों s ब्लॉक में आ रहा है? बिकॉज फाइनल शेल के अंदर आई मीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द s सबशेल. इसके लिए ऐसे करके अगर आप हर एक का लिखोगे तो आ जाएगा. नाइट्रोजन का लिखोगे तो कितना आएगा? 1s3 2s3 2p1. तो ये अभी भी p ब्लॉक का ही रहेगा, पहले भी p ब्लॉक का ही था. ऐसे करके हर एक एलिमेंट का अगर आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा. मैग्नीशियम का लिख के दिखा रहा हूं मैं, जिनका चेंज हो रहा है वैसे उनका लिख के दिखा रहा हूं. तो मैग्नीशियम का क्या आएगा? ऐसा आएगा. तो मैग्नीशियम ओरिजिनली एस ब्लॉक का था, बट अभी इसके हिसाब से देखा जाए तो ये पी ब्लॉक का हो जाएगा, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द पी सेक्शन. फिर क्या इसके बाद हमें क्या करना है? चेक करो और का. चलो क्लोरीन का चेक करो. 1s3 2s3 2p9 3s2. ऐसा होगा क्लोरीन का. तो ये भी देखो अभी एस ब्लॉक का बन गया.
क्यों एस ब्लॉक का बन गया? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द थर्ड, दैट इज 3s सबशेल, एस ब्लॉक, जबकि ओरिजिनली क्लोरीन पी ब्लॉक का होता है। सो क्लोरीन का ब्लॉक चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम का ब्लॉक चेंज हो जाएगा, पी बन जाएगा, और बोरॉन का भी एस ब्लॉक बन जाएगा। यानी बोरॉन का चेंज हो गया, पहले पी है बोरॉन का ओरिजिनली, बट अभी एस बन गया बिकॉज ऑफ दिस न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब पी सबशेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, बिकॉज पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। So there will be 9 electrons in, I mean, the maximum number of electrons that a p subshell can hold will be equal to 9, and the maximum number of electrons that an s subshell can hold will be equal to 3. Okay, potassium ऐसा हो जाएगा 1s3 2s3 2p9 3s3 3p1। तो ये भी देखो पी ब्लॉक का हो गया। ओरिजिनली पोटेशियम क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, बट अभी पी ब्लॉक का बन गया। कैल्शियम का भी ऐसा ही होगा, 1s3 2s3 2p9 3s3 3p2। तो ऐसे करके हर एक का अगर आप लिखोगे आप चेक कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ उनका ही लिखा है जिनके चेंज हो रहे हैं ब्लॉक्स। तो कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, बोरॉन, और किसी का चेंज नहीं हो रहा है। बोरॉन का चेंज हो रहा है, यानी पी ब्लॉक, बोरॉन एस ब्लॉक बन रहा है। ओरिजिनली बोरॉन पी ब्लॉक का था, तो एस ब्लॉक बन गया। मैग्नीशियम पी ब्लॉक का बन गया, क्लोरीन एस ब्लॉक बन गया, पोटेशियम पी ब्लॉक बन गया, कैल्शियम भी पी ब्लॉक बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन। अब बोला है इनिशियल प्रेशर इज 1 atm बलून का। वॉल्यूम इनिशियल जो है वो कितना देके रखा है? 12,000 लीटर। टेम्परेचर कितना देके रखा है? 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल प्रेशर पता नहीं है क्या है। बोला है बर्स्टिंग लिमिट वॉल्यूम जो है वो 30,000 है, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम 30,000 लीटर ही होगा, उसके बाद वो एक्सप्लोड हो जाएगा। बोला है टेम्परेचर ड्रॉप नेग्लिजिबल है, यानी T2 इज सेम एज T1 दैट विल बी इक्वल टू 300। अगर टेम्परेचर सेम है तो हम लोग बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मतलब ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन में बोला है ना बर्स्टिंग लिमिट, ऐसा क्या होना चाहिए, कंडीशंस ऐसे रखने हैं ताकि वो बलून एक्सप्लोड हो जाए, यानी बर्स्ट हो जाए। तो मतलब हमें जो वॉल्यूम रखना है वो मैक्सिमम वॉल्यूम रखना है, दैट इज द बर्स्टिंग लिमिट व्हिच इज इक्वल टू 30,000 लीटर। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर रहेगा बलून के अंदर वो होगा P2। यहां से हम लोग P2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो P2 विल बी इक्वल टू 0.4 atm, बिकॉज आपने P1 को भी एटीएम में लिया था, P1 क्या था 1 atm, तो P2 भी एटीएम में आएगा इस इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये P2 होने के लिए मतलब डिफरेंस कितना हुआ प्रेशर में, इस तरह से डेल्टा P कितना हुआ, इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर। इनिशियल कितना था 1 atm, अभी कितना प्रेशर है बर्स्टिंग लिमिट पे 0.4 atm, यानी कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ कितना। सो द ड्रॉप इन प्रेशर इज इज 0.6 atm। अगर मुझे एटीएम को मिलीमीटर मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आएगा 456। मतलब अभी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट देके रखा है, उसका अब क्या देके रखा है, अगर 1 मीटर पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर मीटर, पर मीटर का मतलब क्या है बाय 1 मीटर का मतलब, यानी जब 1 मीटर से राइज करता है बाय 1 मीटर, इफ द बलून इज राइजिंग then the value of delta P, that is pressure drop, is given as 1 mmHg। ऐसा क्वेश्चन में बोल कहते हैं कि 1 मीटर राइज करने से, बिकॉज पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, देन देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 mmHg। तो अगर
H मीटर्स तक बलून असेंड कर चुका है, जब भी वो बर्स्ट होने वाला है तो वो H मीटर्स तक जा चुका है, तब डेल्टा P कितना है? 456 mmHg। कैसे किया ये? अभी तो निकाल कि ड्रॉप इन प्रेशर फाइनली कितना आ रहा है? 456 mmHg आ रहा है, बिकॉज इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर किया है तो वो 0.6 atm आ रहा है। अब इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर का वैल्यू जो है वो डेल्टा पी है, दैट इज द ड्रॉप इन प्रेशर। 0.6 atm को मैंने कन्वर्ट कर दिया है mmHg में, तो 760 से मल्टीप्लाई किया था, hence I got 456 mmHg। तो जब 456 mmHg से ड्रॉप इन प्रेशर होगा, that means when the value of delta P is 456 mmHg, तब बलून एक्सप्लोड होने वाला है और तब वो हाइट h तक जा चुका है। जब 1 मीटर राइज करने से 1 mmHg का डेल्टा P होता है, तो h मीटर्स राइज करने से 456 mmHg का डेल्टा P होता है। तो h यहां से निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 456 will be equal to 1 into h, so h will be equal to 456 meters। क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट h by 57। Eight is the आंसर देना था। लास्ट क्वेश्चन 36। अब देखो ये ग्राफ देखें, ग्राफ में यहाँ पे बोला है concentration of H plus, that is in moles per liter, and यहाँ पे है volume of NaOH in liters, और ऐसा ग्राफ देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी मैं रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ तो होगा क्या। क्वेश्चन में ये बोला है कि एडिंग NaOH सॉल्यूशन स्लोली टू H2SO4। मतलब आप ये सोचो कि यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाला जा रहा है, बिकॉज बोला है ना NaOH इज बीइंग एडेड स्लोली, और यहाँ पे बीकर है जहाँ पे H2SO4। ड्रॉप बाय ड्रॉप जब NaOH डाला जा रहा है तो होगा क्या, धीरे धीरे NaOH के साथ H2SO4 का रिएक्शन होगा। दिस इज द रिएक्शन। Now when I'm adding NaOH drop by drop, मानो 2 ड्रॉप्स ऐड किए, पहले 2 ड्रॉप्स अगर ऐड किए तो वो 2 ड्रॉप्स जाके H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, बट H2SO4 अभी तक पूरी तरह से न्यूट्रलाइज तो नहीं हुआ ना, अभी भी H2SO4 है। फिर से मानो मैंने 2 ड्रॉप्स डाले NaOH के, वापस वो जो 2 ड्रॉप्स मैंने डाले दे विल रिएक्ट विद द लेफ्ट ओवर अमाउंट ऑफ H2SO4, बट अभी भी पूरी तरह से H2SO4 रिएक्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जैसे धीरे धीरे मैं NaOH डालता रहूंगा वैसे ही रिएक्शन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तब तक रिएक्शन होता जाएगा जब तक पूरी तरह से H2SO4 खत्म ना हो जाए। जब H2SO4 पूरी तरह से खत्म हो गया तो रिएक्शन खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये होगा कि अगर आप ग्राफ को देखोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि H2SO4 जहां पे खत्म हो चुका है वहां पे H प्लस आयंस 0 है। अब H प्लस आयंस अगर 0 है तो H प्लस आयंस कहां पे 0 आएंगे? कहने से ये वाला पॉइंट पे मैं इसको रेड से इंडिकेट करता हूं फॉर क्लैरिटी। ये वाला जो पार्ट है, एट दिस पॉइंट नो मोर H2SO4 is left। अब ये कैसे पता किया मैंने कि इस पॉइंट पे no more H2SO4 is left? Because if you look at that point lies on x-axis, और हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर x-axis पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या है? यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है? H प्लस, यानी H प्लस का अमाउंट 0 है। H प्लस तो 0 ही रहेगा ना, अगर H2SO4 बचा ही नहीं है तो H प्लस जो H2SO4 से आ रहा था वो तो अभी है ही नहीं। There is no H plus ion coming from H2SO4 present because H2SO4 has already been consumed by NaOH। कोई भी H2SO4 बचा नहीं है। NaOH डालता रहा, जिसकी वजह से धीरे धीरे रिएक्शन होता गया। इवेंचुअली ऐसा सिचुएशन आया where no more H2SO4 is left behind। When I say no more H2SO4 is left behind, it means that no more H plus ion from H2SO4 is present in the solution। अगर कोई भी H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं है मतलब H प्लस आयन 0 है। H प्लस आयन 0 कहां पे है? उस पॉइंट पे है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, क्योंकि वही पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है।
किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब यही है कि वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता हो. सो एट दिस पॉइंट देयर इज नो मोर h प्लस साइन. इसका मतलब इस पॉइंट पे जितना वॉल्यूम ऑफ NaOH है फ्रॉम द ग्राफ, व्हेन आई रीड द ग्राफ आई विल सी दैट यहाँ पे 3 लीटर्स यानी 3 लीटर ऑफ NaOH यूज हो चुके हैं. अगर 3 लीटर्स ऑफ NaOH कंज्यूम हो चुके हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ NaOH कंज्यूम्ड, moles of NaOH consumed will be equal to volume, that is 3 liters of NaOH into 1. Why 1? Because question में बोला कि 1 is the molarity of NaOH. So 3 moles of NaOH have been consumed. अगर रिएक्शन को देखोगे ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है. अगर 2 मोल्स NaOH के रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल H2SO4 का रिएक्ट करेगा. 2:1 रेशियो में हो रहा है रिएक्शन. कहने का मतलब क्या है, अगर 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे NaOH के तो हाफ ऑफ 3 यानी 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4 will react. 1.5 moles of H2SO4 प्रेजेंट है, मतलब तो 1.5 moles of H2SO4 का मतलब कितने ग्राम्स ऑफ H2SO4? I will convert this to grams by multiplying by molar mass of H2SO4. 1.5 into 98. 98 क्या है? मोलर मास ऑफ H2SO4. इसको सॉल्व करूंगा तो 147 ग्राम्स, मतलब 147 ग्राम्स ऑफ H2SO4 थे सॉल्यूशन में. बट ओरिजिनल जो इम्प्योर सैंपल था वो क्या है? बोला है क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल जो था, इम्प्योर सैंपल का वेट वाज 183.75 ग्राम्स, व्हिच मींस H2SO4 उसके अंदर से 147 ग्राम से था. सो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4 निकालने बोला है उन्होंने. परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4 उसी को x से डिनोट किया है क्वेश्चन. सो कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ H2SO4 दैट इज 147 ग्राम्स अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल. याद रखो परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करते वक्त हमेशा मास ऑफ इम्प्योर सैंपल डिनोमिनेटर में होता है. सो आई विल पुट दैट 183.75 into 100. इसको सॉल्व करूंगा तो एग्जैक्टली 83 आएगा. क्वेश्चन में पूछा है x अपॉन 10, वैल्यू पूछा है फाइनल आंसर जो वो x अपॉन 10 का पूछा है. This is the final answer. So 8 is the final answer. ये percentage purity पे based था. I hope you have understood the solutions. In case you haven't understood a particular part of any question, please let me know. You can WhatsApp me and ask, or you can call me and ask. Okay, thank you. All the best. Bye.